Good afternoon, students. How are you all? I hope you are enjoying your English class, English grammar class on this digital platform. So, we are learning determiners. I have been teaching you determiners for few days, and today I will be moving on to the part 6 of this lesson, determiners. Okay? So today I will be teaching you first of all the first type of determiner. Types of predeterminers you have learnt. Today you will be learning the types of determiners, and the first type of determiners is articles. Okay? Already I have given some examples before related to articles. Okay? So today I will be teaching you articles in detail. Okay? You see here, my dear students, an article is a word that modifies or describes the noun. आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है बेटा. एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनर्स, एंड आर्टिकल्स कम्स in the category of determiners only, or you say this is a determiners. Articles are determiners which come in the category of articles. Okay, articles I have been teaching you. Okay, so an article is a word that modifies or describes the noun. Okay, it is used before the noun to show whether it refers to something specific or not. So article नाउन से पहले इसका यूज होता है, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने के लिए कितना स्पेसिफिक है. ओके, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं बताया ना, कोई चीज कितना खास है, खास से पहले क्या लगेगा, जो कम खास है उसके पहले क्या लगेगा, तो नाउन को ही डिस्क्राइब करता है. तो नाउन कितना खास है, कितना स्पेसिफिक है, ये बताएगा आर्टिकल. ओके, now you come to types of articles. Basically there are two types of articles: definite article, indefinite article. Okay, definite article, what does it say? To be clear, exact or obvious about something. Actually definite article gives a clear picture of a noun. Okay, and also the exact or obvious, it shows exact or obvious about something. Okay, it gives about a specific, it tells about the specific purpose of a noun or a specification of a noun. Okay, किसी नाउन का पार्टिकुलर चीज के बारे में बताता है, पार्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है. द okay, indefinite articles, something which is not clear, obvious or exact. मतलब in a general way, indefinite articles are used in a general way, and that is used in a specific way, definite articles. Okay, so this is the only difference. Okay, see here, it's given about definite article. So definite article, in definite article the comes. The is an example of definite article, or the is a definite article. Okay, and a and an are indefinite articles. Okay, so we are talking first of all about definite article. The definite article is the word the. Definite article कौन सा word होता है? The. Okay, it is used before a noun to specify it as something previously considered. और definite article ये noun से पहले यूज होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए as something previously considered.
जिसके बारे में हम जानते हैं, जो चीज के बारे में जानते हैं उसी के बारे में हम कह रहे हैं जब, तो उसमें द लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज ए कैट। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं, यहां एग्जाम्पल दिया गया है, मैं बोल दे रहा हूं उसके बाद, शी हैज ए कैट। ठीक है, द कैट इज ब्यूटीफुल। मैंने क्या पहले कहा, शी हैज ए कैट, उसके पास एक बिल्ली है, एक बिल्ली है उसके पास, एक से ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द कैट इज ब्यूटीफुल, मतलब वही कैट, उसी का कैट, उस लड़की के कैट जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसीलिए वो खास हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इधर देखें, व्हेन टू यूज द, यूज द आफ्टर यू हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट टाइम। द का प्रयोग कब करते हैं, जब पहली बार उसकी चर्चा हो गई है, कोई चीज की चर्चा हो गई है पहली बार, उसके बाद उस चीज की अब आगे चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें उसके पहले हम द लगाएंगे। कोई भी चीज क्या होगा, क्या होगा, नाउन, एनीथिंग। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, इट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सी, दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग, तो यहां आर्टिकल क्या लग गया, ए, तो ये क्या हो गया, इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया। और डॉग क्या है, ये नाउन है, तो यहां डॉग, यहां डॉग क्यों नहीं लगा, दिस इज द डॉग, ये नहीं लगेगा। द डॉग इज ब्राउन, कौन सा डॉग, जिस डॉग का चर्चा अभी इस सेंटेंस में हुआ है, इसीलिए यहां द लगा हुआ है। द इज स्पेसिफिक हियर, सो द इज ए डेफिनेट आर्टिकल, द इज ए डेफिनेट आर्टिकल। ओके, यूज द when the person you are talking to already knows what you are talking about। द का उपयोग तब करो जब जिस व्यक्ति के बारे में बात तुम कर रहे हो उसको तुम जानते हो, उसको पहले से जानते हो, जिस व्यक्ति को तुम जानते हो उसके लिए द उपयोग करोगे। ठीक है, जैसे देखो, आई एम गोइंग टू द बैंक, या कोई चीज के लिए, आई एम गोइंग टू द बैंक, आई एम गोइंग टू ए बैंक नहीं लिखा, आई एम गोइंग टू द बैंक, मतलब मैं बैंक जा रहा हूं, उसी पर्टिकुलर बैंक, खास बैंक के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए द यहां लगेगा। ओके, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल ओवर हियर, डेफिनेट आर्टिकल, DA। देयर इज समवन नॉकिंग एट द डोर, यहां भी डेफिनेट आर्टिकल का बात कर रहे हैं हम लोग, द का। ठीक है, इट मस्ट बी द कंप्यूटर रिपेयरमैन, द कंप्यूटर रिपेयरमैन, द कंप्यूटर रिपेयरमैन, तो द लगा हुआ है उसी व्यक्ति के लिए जिसको तुम जानते हो, स्पेसिफिक है। ओके, क्लियर। अगेन डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है और कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है। वी कैन यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन। डेफिनेट आर्टिकल हम लोग किसी कॉमन नाउन से पहले कर सकते हैं। ठीक है, कोई कॉमन नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे रिवर हो गया, सी हो गया, ठीक है, तो खास करके यहाँ रिवर का चर्चा किया गया है। हाँ, और जिसके बारे में हम जानते हैं, कॉमन, दैट इज कॉमन टू मी। कॉमन नाउन क्यों कहा गया है, दैट रिवर आई नो इज नोन टू मी। तो ये रिवर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, वहां द रिवर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो रिवर हमसे परिचित है, दैट इज स्पेसिफिक टू मी, आई नो दैट रिवर, दैट्स व्हाई आई यूज द बिफोर द रिवर। यही चीज कहना चाहता है डेफिनेट आर्टिकल। He threw the ball into the river. He threw the ball into the river. The ball, वो बॉल भी बहुत खास है, स्पेसिफिक है, इसीलिए द बॉल। ही थ्री ए बॉल नहीं हुआ इंटू ए रिवर, ये भी हो सकता है ना, ही थ्री ए बॉल इंटू ए रिवर, तो पहली बार फेंका है, पहली बार वो बॉल खेल रहा है। हाँ, अभी फिर वो बॉल खेलते जा रहा है, वो बॉल परिचित हो गया, जो बॉल के बारे में बात होता है उसको मैं जानता हूं।
या वो जानता है। तो ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, तो द क्या हो गया, द क्या हो गया दोनों जगह, डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है द, ठीक है, दूसरा कोई नहीं होता है। द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, उसी पार्टिकुलर मदर का बात हो रहा है, द मदर, जिसको तुम जानते हो, इसीलिए कह रहे हो द मदर, ए मदर नहीं कह रहे हो, कोई पिक्चर नहीं है मदर का और बच्चे का, ठीक है। सो द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, उस बेबी को भी जानते हो तुम, सो दैट इज स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई द हैज बीन पुट ओवर देयर, तो द इज डेफिनेट आर्टिकल ओवर हियर। नाउ यू सी द गर्ल्स वर नॉट इन द स्टेडियम, द गर्ल्स, द स्टेडियम, ये खास है, स्पेसिफिक है, वी आर स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट दोज गर्ल्स, द गर्ल्स, वही लड़कियां, हाँ कहाँ है, वे नॉट, कहाँ नहीं थे, स्टेडियम में, तो द स्टेडियम का यूज किए हैं। जैसे कोई पूछेगा वेयर आर द गर्ल्स, तुमको गर्ल्स नहीं मिले, गर्ल्स लोग कहाँ गई, तो तुम क्या बोलोगे, द गर्ल्स आर नॉट इन द स्टेडियम, या वे आर नॉट इन द स्टेडियम, ओके, आई डिड नॉट सी द गर्ल्स इन द स्टेडियम, ये भी जवाब दे सकते हो। आई डिड नॉट सी ए गर्ल बोल कर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पार्टिकुलर गर्ल्स का बात हो रहा है जो तुमसे पूछा जा रहा है, तो आई डिडंट सी द गर्ल्स इन द स्टेडियम, क्लियर। दे विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट वीक, स्कूल भी यहां स्पेसिफिक है, इसीलिए द लगा हुआ है। आई स्टडी विथ हिम इन द यूनिवर्सिटी, इन ए यूनिवर्सिटी नहीं, उसके साथ तुम पढ़ रहे हो, कहाँ, वो जहां पढ़ता है उसी यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसीलिए द लगेगा, द यूनिवर्सिटी। ही इज प्लेइंग विद द डॉग, द डॉग, वो डॉग भी स्पेसिफिक है, इसीलिए उससे पहले द लगा हुआ है। तो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, ओके, क्लियर। अभी द के बारे में और कुछ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। द इज यूज्ड टू रिफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड और यूनिक, द उन चीजों के बारे में बताता है, दर्शाता है जो कि ओनली वन है वर्ल्ड में, इट इज ओनली वन, इट इज वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, दिस मे बी एन यूनिवर्सल थिंग, कोई यूनिवर्सल थिंग के पहले भी द का उपयोग होता है, दैट इज ओनली वन इन द यूनिवर्स, ओके, ओके। दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्स तुम जानते हो स्काई में चमकता, और कुछ है, स्टार चमकता है, मून भी दिखाई देता है, लेकिन चमकता कौन है, स्टार्स है, ठीक है। द स्टार शाइन इन द स्काई, स्काई भी एक है, स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल है स्काई, ओके, ये यूनिवर्सल है, यूनिक है वर्ल्ड में, इसीलिए द का प्रयोग किया जा रहा है, द, यहां भी द का प्रयोग किया जा रहा है, क्लियर। तो द जो है आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, किसकी बात कर रहे हैं, द सन, सन एक ही है, दूसरा सन है क्या, तो हम लोग जिस सन की बात कर रहे हैं सन एक ही है, इसीलिए द लगेगा, स्पेसिफिक है, हाँ। ईस्ट पूरब दिशा भी स्पेसिफिक है, ठीक है, पूरब एक ही तरफ है ना, कि चारों तरफ है, नहीं ना, और पूरब एक ही है, दिशा जो पूरब जो दिशा है ईस्ट एक ही है, ठीक है, तो इसीलिए स्पेसिफिक है, इसीलिए यहां द लगा हुआ है। द स्काई इज ब्लू, स्काई आकाश एक ही है, ये यूनिवर्सल है, यूनिक है, बहुत ही माने अनोखा चीज है, कहीं स्काई का ग्राउंड के नीचे देख सकते हो नहीं ना, तो नहीं देख सकते हो, एक ही है आकाश में, स्काई आकाश में दिखता है, तो इसीलिए द लगा है स्काई से पहले, क्यों, क्यों, स्पेसिफिक है। सो इट्स वेरी सिंपल,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी अनाउंसिंग समथिंग टुडे। एक ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अनेक नहीं है, अनेक नहीं है, एक ही है। दूसरा जो है वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट तो ऊप हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट तो एक ही है ना, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है। तो यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी अनाउंसिंग समथिंग टुडे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज कुछ अनाउंस करेंगे, उनको द लगा है, स्पेसिफिक है, ठीक है। द नहीं लगेगा तो स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन द लगाना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी बहुत ही यूनिक है, सन यूनिक है, इसीलिए सन से पहले द लगा हुआ है और वेस्ट का पहले द लगा हुआ है। तो यूनिकनेस के बारे में बताता है सन और वेस्ट का, इसीलिए द लगा हुआ है दोनों के पहले। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो पृथ्वी एक ही है, आकाश में जाकर पृथ्वी नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा क्या, दूसरा पृथ्वी मिलेगा? आकाश में, पाताल में, कहीं भी चल जाओ, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी यही है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, यही पृथ्वी है। तो पृथ्वी अर्थ जो है यूनिक है, इसीलिए द लगा हुआ है, यूनिक है, स्पेसिफिक है, इसीलिए उसके पहले द लगा हुआ है। क्लियर? अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल को लेकर अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अब और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखोगे। द इज यूज्ड टू रिफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहां पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में बात करते हैं वहां द का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग का जहां बात करते हैं उससे पहले द लगता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स, लंग्स जो होता है स्पेसिफिक है, लंग्स आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का लंग खो जाए तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, रिप्लेसमेंट होगा क्या? दूसरा लंग्स नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे जानवर का लंग्स लगा दें, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए तुम्हारा लंग्स जो है स्पेसिफिक है, आईज है स्पेसिफिक है, नोज स्पेसिफिक है, ईयर्स स्पेसिफिक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर स्पेसिफिक, ठीक है। इसीलिए क्लियर बता दिया गया है। तो द क्या हो गया, यहां डिटर्मिनर हो गया। कौन सा कैटेगरी? आर्टिकल्स, वो भी कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। ही कॉट हिम बाय द नेक, उसने उसके गले में दबोचा, गले में पकड़ा। तो क्या हो गया? नेक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। गले के बिना शरीर अधूरा है ना। तो इससे पहले द लगेगा। नेक इज स्पेसिफिक, नेक क्या है? स्पेसिफिक है। देयर वॉज एन इंजुरी इन द राइट आई, दाहिना आंख में इंजुरी हो गया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली राइट आई की। और आई भी रहता तो भी स्पेसिफिक रहता, द लगता। द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी। हमारे शरीर में कौन ब्लड पंप करता है? हार्ट। हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे शरीर में, ये हार्ट ही पंपिंग का काम करता है। तुम लोग साइंस में पढ़े होगे, ठीक है। तो हार्ट बहुत स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके पहले द लगा हुआ है, ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल, और देखो अब डेफिनेट आर्टिकल का और कहां उपयोग होता है, ये सब ध्यान देना। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम, नॉट द ईयर्स। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है ये डेट्स का पहले, डेट जो हम लोग लिखते हैं ना, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 22 नवंबर, 22 अक्टूबर, उससे पहले यूज होता है। या पीरियड ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाया जाता है, अवधि, समय का अवधि, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू सी, दे गॉट मैरिड ऑन द 28th of April। 28th of April ये खास है, ये खास है और यूनिक है, और क्या है? स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके पहले द लगा हुआ है। द 2007 was a wonderful year।
हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईयर के बारे में, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां द सही है, ठीक है। उस 2007 ईयर जो साल चलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, इन द ईयर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये द क्या है? ये डेफिनेट आर्टिकल है। ही वॉज बोर्न इन द 1977, ये आपको लगता है ये सही है? ये नहीं, सही नहीं है। ये 1977 के पहले द नहीं आएगा, ये 1977 ही होगा ओनली, ओके। The is used before the names of seas, rivers, deserts, mountains and the names of large public buildings. द का प्रयोग कहां किया जाता है? सीज के नाम से पहले, रिवर्स के नाम के पहले, डेजर्ट्स के नाम से पहले, माउंटेन्स के नाम से पहले, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट, जैसे तो ताजमहल। ताजमहल होता है ना, बोलते हैं ना ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल से पहले द लगता है। द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट, एम आई राइट? तो मॉन्यूमेंट का जहां नाम रहता है उससे पहले वो स्पेसिफिक होता है। कोई भी मॉन्यूमेंट जो होता है, जो फेमस बिल्डिंग होता है, स्पेसिफिक होता है, इसीलिए उससे पहले द लगता है, ठीक है। यहां दिया हुआ एग्जाम्पल में, वी विजिटेड द ताजमहल, हम किसकी बात कर रहे हैं? ताजमहल की। ताजमहल स्पेसिफिक है, इसीलिए उससे पहले द लगा हुआ है, ओके। द सहारा इज अ फेमस डेजर्ट, सहारा क्या है? सहारा एक डेजर्ट है और स्पेसिफिक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सहारा की। सहारा एक डेजर्ट का नाम है, तो द लग गया है, ठीक है। बहुत फेमस डेजर्ट है, इसीलिए द सहारा लगा है। सभी डेजर्ट के पहले नहीं लगा, नहीं लगेगा, वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। राहुल वेंट टू द टाउन हॉल, द टाउन हॉल, टाउन हॉल स्पेसिफिक है, वो टाउन हॉल को जानता है, ठीक है। इसीलिए लिखा है वेंट, लिखा गया है वेंट टू द टाउन हॉल, टू ए टाउन हॉल नहीं लिखा गया है, टाउन हॉल स्पेसिफिक है। डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, कंट्रीज से पहले, ज्यादातर बहुत कम देशों के नाम के पहले है द लगता है। ज्यादातर देशों, देश के नाम के पहले द नहीं लगता है। कुछ देश हैं उनके पहले नाम, उनके पहले ये द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल। टेरिटरीज का नाम के पहले, लाइक इटाली, मेक्सिको, ठीक है। हम कहते हैं ना इटाली, द इटाली नहीं कह सकते हैं, द मेक्सिको नहीं कह सकते हैं, एटसेट्रा। हाउएवर द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ये सब से पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक है, ये नेम जो है स्पेसिफिक है, इसीलिए इससे पहले द लगा हुआ है। नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स और स्टेट्स, नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, तो वी कैनॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स। द एकमा नहीं कर सकते हैं, द नचाप नहीं कर सकते हैं, द छपरा नहीं कर सकते हैं, द बिहार नहीं कर सकते हैं, द यूपी नहीं कर सकते हैं, द झारखंड नहीं कर सकते हैं, द छत्तीसगढ़ नहीं कर सकते हैं, द मध्य प्रदेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई गली का नाम है कैमेक स्ट्रीट, द कैमेक स्ट्रीट नहीं कर सकते हैं, द पार्क स्ट्रीट नहीं कर सकते हैं, द फोर्थ स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, वो भी स्ट्रीट का ही नाम है, फोर्थ एवेन्यू, द फोर्थ एवेन्यू, ओके, नहीं कर सकते हैं, ओनली फोर्थ एवेन्यू, ओके। नेम्स ऑफ लेक्स, एग्जाम्पल लेक एरी, द लेक एरी नहीं लिख सकते हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक, एक्सेप्ट विद ग्रुप ऑफ लेक्स। कोई ग्रुप ऑफ लेक्स आ जाता है, उसको हम द से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट लेक्स, द ग्रेट लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी लेक्स, ओके। आइलैंड्स का नाम, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड जहां है वहां द लगा सकते हैं। एग्जाम्पल है किसी के पास? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेरी गुड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, उससे पहले द नहीं लगा सकते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक है तो हम द लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते हैं, बहुत कम यूज होता है।
So these are the articles, definite articles which you have studied. So my dear students, always keep in mind that the is used for a specific person, place or thing, or a specific feeling or animal. Okay, when you specify a noun, before that you have to use the definite article. But when you are not speaking about any specific person, place or thing, or a specific noun, then a or an will be put before that noun. Okay, and that refers to indefinite articles. So in the next session I will be teaching you indefinite articles also. Okay, so that's all for today, my dear students. Thank you.